Talking about education, today we recall a quote quoted by Swami Vivekananda. Education is the manifestation of perfection. इसका मतलब है कि स्टूडेंट के उस इनहेरेंट टैलेंट को बाहर निकालना which was hidden. So, for additional information and learning, it is indeed our honor that the Mass Media Department of Sardardun Public School is here with an exclusive podcast about subject enrichment activity with our experts, Mr. Junaid Alam, Head of the Examination Department, and Ms. Suchita Goyal, Deputy Head of the Examination Department. We welcome you, sir and ma'am, and our audience also seems excited and impatient to ask multiple questions about subject enrichment activity. So, let's dive in. So our first question, sir, to you is that बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी है क्या? पेरेंट्स भी पूछ रहे हैं और हम सबकी क्यूरियोसिटी है, so if you can answer. Now, basically, subject enrichment activity is a task-based learning. If you talk about the National Education Policy, which was released in 2020, it has been promoting holistic learning of the student, and it is doing away with the rote learning system. So, the students in subject enrichment activity will be doing hands-on activity where they can be experimenting, researching. They can have vocabulary games for languages. They can have recitations and all. And sir, how are we implementing it to our curriculum? No, we are planning that we design subject-based activities, and on the basis of these subject-based activities, each activity may have different rubrics on which each student will be assessed. The modernization of education has come with 21st century skills. So based upon that, we have a question from the audience to you, ma'am. My question is to Suchita ma'am. How does subject enrichment activity support 21st century skill development? ओके जब हम 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं तो माइंड में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एक्चुअली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सीबीएसई या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी ये चीज़ बहुत क्लियर कर रही है कि वी नीड टू मोटिवेट आवर किड्स टू बी रेडी फॉर द 21st सेंचुरी स्किल्स। अब ये 21st सेंचुरी स्किल्स क्या होते हैं और इनको समझना भी एक हमारे पास एक नया टास्क होता है कि हम हमारे बच्चों को किस चीज़ के लिए रेडी कर रहे हैं। The main motto of the CBSE कह लो या NEP का कह लो, we are making our kids ready so that they are, not only with the theoretical aspect, they have the knowledge of the entire practical things जो वो learn कर रहे हैं या वो याद कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं है कि जाके हमें सिर्फ उस चीज़ को implement करना है और हमारा काम हो जाता है, नहीं। We are doing with the learning basis, और इन learning basis को हम हमारी लाइफ में कैसे implement कर रहे हैं या स्टूडेंट्स इन चीज़ को कैसे implement करें, that plays a very major role। जब तक हम स्कूलिंग की बात करते हैं, हम सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज की बात करते हैं, हम वहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग की कभी बात करते ही नहीं। एप्लीकेशन मीन्स इफ़ आई हैव लर्नड अ फॉर्मूला, मुझे पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्यों लगा है यहाँ पे या इस फॉर्मूले की यहाँ ज़रूरत क्यों है, रादर देन जस्ट सॉल्विंग अ क्वेश्चन कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा इस फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। वाई देयर वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, उस चीज़ की ज़रूरत क्यों थी वहाँ पे, वो भी हमें पता होना चाहिए। आज हम बच्चों को बोलते हैं कि एक पोस्टर बना के लेके आ जाओ, तो इट्स नॉट जस्ट दैट टू ऐड द कलर्स एंड टू प्रिंट समथिंग विच इज़ ब्यूटीफुल टू द स्टूडेंट्स और टू द आई। द मेन थिंग इज कि आप उस पोस्टर के थ्रू क्या मैसेज देना चाह रहे हो। इफ एन एप्लीकेशन बेस्ड कंसेप्ट की हम बात करते हैं तो हमने बोला बच्चों को कि चलो आज एक पीपीटी बनाते, दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव एडेड द एंटायर कंसेप्ट वट एवर यू हैव लर्न। आपने ट्रांजिशंस पढ़ा, आपने एनिमेशंस पढ़ा, आपने सब लगा दिया और आपकी पीपीटी अच्छे से हो गई, नो। We are asking them to also inculcate the knowledge that they have learned in that particular entire session. आपने अगर एक सब्जेक्ट के अंदर, let's suppose if a student is making a PPT on the concepts learned in science, तो वहाँ पे वो दो सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट कर रहा है, उसकी साइंस की नॉलेज को प्लस उसके कम्युनिकेशन या उसकी कंप्यूटर में उसने जो भी पीपीटी से रिलेटेड कंसेप्ट लर्न किया, उन सबको ज्वाइन करके वो एक नया maybe a kind of an PPT which is delivering some or the other kind of information। यहाँ पे आप ग्रुप बेस्ड एक्टिविटीज़ की भी बात करते हो तो एक रोल प्ले करा सकते हैं। हमारे पास एक कहानी है, एक हिंदी में हमने एक साहित्य पढ़ा, उस साहित्य का क्या नॉलेज आपने लिया, क्या हम उस सिचुएशन को चेंज करके उस कहानी का जो एंड है उसको चेंज कर सकते हैं, या उस कहानी से क्या हम एक नई इन्फॉर्मेशन या एक नया लेट्स से एक नॉलेज गेन कर सकते हैं, रादर देन द सेम नॉलेज जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि हाँ इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती। क्या हम उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू का क्या एक पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर सकते जिससे हमें उससे एक नई इन्फॉर्मेशन मिले और हमारा जो जो स्टूडेंट्स है वो एक नई नॉलेज को गेन करे।
अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट क्रॉस कल्चर प्रोजेक्ट्स बनवा सकते हैं हम। क्रॉस कल्चर प्रोजेक्ट्स मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट, हमने एक स्टेट ले लिया राजस्थान और एक दूसरा स्टेट ले लिया, हमने लेट्स सपोज मैंने गुजरात ले लिया या कोई दूसरा स्टेट ले लिया। आज हम उन दोनों कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके बीच के डिफरेंसेस के साथ साथ वो कैसे किसी एक पर्टिकुलर थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। आज हो सकता है मेरे यहाँ पे कोई एक फेस्टिवल किसी अलग तरीके से बनाया जाता है, वो सेम फेस्टिवल वहाँ पे किसी और नाम से पुकारा जाता है, तो क्या हम दोनों आपस में रिलेट कर सकते हैं? अब इन सबको याद करने में, इन सबको समझने में स्टूडेंट्स में फेस मेनी चैलेंजेस, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, वो अटकेंगे कहीं ना कहीं। जहाँ वो अटकेंगे वो वहाँ अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करेंगे, वो अपनी एनालिसिस थिंकिंग को यूज़ करेंगे कि हाँ मुझसे यहाँ ये गलती हुई है, शायद मैं इस काम को किसी और तरीके से करता या करती तो मेरा टास्क एक अच्छे से कंप्लीट होता। सो दैट विल हेल्प देम टू हैव अ क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इन देयर माइंडसेट। Also they will help to learn from their mistakes, and with continuous revision they can have a absolute good learning from that particular concept. So let's move on to the next question, which is from our audience again. Sir, what is the difference between these activities and the normal academic tasks? Basically, subject enrichment activity and regular academic task ये दो अलग चीजें नहीं हैं. They both are the same. Subject enrichment activity is actually the part of regular academic task. कैसे? क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की यदि हम बात करें तो उसके हिसाब से रोट लर्निंग हमको खत्म करनी है और हम बच्चों के अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, विच इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग. एंड हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? These activities will promote experiential learning, art integration, and they will also foster skill development in the students. Now the basic question arises कि हम लोग कैसे ये activities करेंगे? सब्जेक्ट वाइज अलग अलग प्लानिंग होने वाली है. हर सब्जेक्ट टीचर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक सेलेक्ट करेंगे और उन टॉपिक्स के ऊपर दे विल प्लान हाउ टू एग्जीक्यूट. The information about these activities will be shared with the students in advance, and like if I tell you some examples for the activities that we will be conducting, like for languages हम लोग कैसे करने वाले हैं. languages के अंदर हम क्रिएटिव राइटिंग यूज कर सकते हैं, हम वोकैबुलरी गेम्स यूज कर सकते हैं, हम ASL यूज कर सकते हैं. साइंस के अंदर तो काफी इजी हो जाता है चीजों को लेके, बिकॉज साइंस के अंदर बच्चे हमेशा किताबों को देखते हैं, किताबों के अंदर वो एक्टिविटीज पढ़ते हैं, किताबों के अंदर उन्होंने सुना होता है कि उस साइंटिस्ट ने उस जमाने में कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया था. With help of these subject enrichment activities, we can recreate those experiments with children, and children will have hands-on practice for the activities. Social science के अंदर we can have map work, debates, political science जो subject हमारा introduce होता है grade 6 onwards, उसके अंदर we can have debates on the students, so as the student have better learning of the political issues a country can face. So let's move on to the next question, which is from our audience again. So sir, quoting Einstein, you can't judge a fish by its ability to climb a tree. So हर स्टूडेंट तो हर एक्टिविटी में परफेक्ट नहीं हो सकता, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स जो किसी एक्टिविटी में वीक है, वैसे स्टूडेंट्स को आप कैसे असेस करने वाले? Right, you are exactly right that every student is not equal, every student has different learning abilities, और उसी हिसाब से ये सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस की गई है. जो बच्चे राइटिंग में अच्छे नहीं हैं वो इनएक्टिंग में अच्छे होते हैं, जो बच्चे स्पीकिंग में अच्छे नहीं हैं वो लिख के अपने आंसर्स दे सकते हैं. तो ये जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज हम लोगों ने प्लान की है उसी के अकॉर्डिंग की जा रही है कि एक फिश की एबिलिटी हम उसकी स्विमिंग से ही मेजर कर सकें, एक मंकी की एबिलिटी उसकी ट्री क्लाइंबिंग एबिलिटी से ही हम मेजर कर सकें, ताकि हर बच्चा. सीबीएसई की अगर बात करें तो सीबीएसई का एक और इंट्रोडक्शन है, दैट इज इंक्लूसिव लर्निंग. इंक्लूसिव लर्निंग बेसिकली उन लोगों के लिए है, लाइक
अलग अलग हमारी कैटेगरीज चलती है. सम स्टूडेंट्स आर फास्ट लर्नर्स, सम स्टूडेंट आर एवरेज लर्नर्स एंड सम स्टूडेंट्स आर स्लो लर्नर. इंक्लूसिव लर्निंग, इन सब को एक साथ लेके चलना है और इन सबको बराबर एकेडमिक एडवांटेज मिले, उसके ऊपर फोकस करता है. सो ऐसा नहीं है हम लोग सभी एक्टिविटीज उसी हिसाब से प्लान करेंगे, उसी हिसाब से रूब्रिक्स प्लान होंगे और उस रूब्रिक्स के बेसिस पे ही बच्चे का असेसमेंट किया जाएगा. लाइक अगर मैं बात करूं, अगर कोई एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसके अंदर बोला गया है कि बच्चों को रोल प्ले करना है. अब रोल प्ले के अंदर वही बात आ जाती है कि हर बच्चा एक्टिंग में अच्छा नहीं होता है. कोई एक्टिंग में अच्छा होता है, किसी को डायलॉग अच्छे से लर्न हो रहे हैं, किसी को डायलॉग लर्न नहीं हो रहे हैं, कोई अटक रहा है, कोई स्टेज फियर हो रहा है किसी को. तो एक रोल प्ले का मतलब ये नहीं हुआ है कि वो बच्चा केवल और केवल इनैक्टमेंट करेगा. अगर आप मूवीज की बात करते हैं तो मूवीज के अंदर सिर्फ हीरो हीरोइन नहीं होते हैं, उसके कैमरे के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं. तो सबका असेसमेंट किया जाता है कि अगर किसी का रोल प्ले का एक्टिविटी है तो किसने कंटेंट लिखा है तो उसके कंटेंट पे उसका असेसमेंट होगा, किसी ने डायलॉग्स लिखे हैं तो उसके डायलॉग्स पे उसका असेसमेंट होगा, किसी ने एनैक्टमेंट किया है तो उसका असेसमेंट उस एनैक्टमेंट पे होगा, ताकि सबको बराबर मिले. प्रॉब्लम आती है जब रेगुलर असेसमेंट की हम बात करते हैं, तो रेगुलर असेसमेंट के अंदर भी बच्चों को आती है कि कई बच्चे जिनको आंसर्स आते हैं लेकिन वो पेपर पे नहीं उतार पाते. तो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज उस बैरियर को तोड़ना चाह रही है. हम विद हेल्प ऑफ दिस सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज वी आर ट्राइंग टू ब्रेक दोज बैरियर्स एंड सभी बच्चों को जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट का कंसेप्ट, उनका मेन मोटो, वो सब उन तक पहुंचे, उनके लाइफ में एंड फॉर देयर फ्यूचर स्किल डेवलपमेंट आए. Sir and ma'am, although we have much more questions, but as we are falling short of time, we would like to ask you a last question. कि subject enrichment activity का क्या weightage रहेगा term result में? Talking about the weightage of subject enrichment activity, the subject enrichment activity will be conducted of 20 marks in each grade और उसका रिजल्ट में उसका जो वेटेज रहेगा 10 मार्क्स का रहेगा. इफ आई वुड लाइक टू इफ आई वुड एक्सप्लेन द ब्रेकअप ऑफ द टर्म रिजल्ट, लाइक this year onwards, instead of having 4 periodic tests, we have changed our assessment pattern and we will have, in each term we will have a subject enrichment activity, a periodic test and a term end exam. The periodic test will be of 20 marks. It will be conducted of 20 marks as always in fashion of Thursday tests. The subject enrichment activities, which the schedule is already shared with everybody. Talking about the assessment scheme, we have made certain changes in our assessment scheme. अगर पिछले साल तक की मैं बात करूं तो पिछले साल तक हमारे पास में जो असेसमेंट स्कीम था वो in each term we had 2 periodic tests, periodic test 1, periodic test 2, then we had midterm exams, then we had periodic test 3, periodic test 4, and then we had the annual exam. And in between we conducted subject enrichment activities and internal assessments. Now this year onwards हमने थोड़ा सा चेंज किया है अपने असेसमेंट स्कीम के अंदर. अब हमारे पास में होगा सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी फर्स्ट, फॉलोड बाय पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट, उसके बाद में हमारा मिड टर्म एग्जाम होगा और उसके बाद में वी हैव सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी सेकेंड और पीरियोडिक टेस्ट सेकेंड, फिर एनुअल एग्जाम, एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल हैव द इंटरनल असेसमेंट. सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी जो रहेगा, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी विल बी कंडक्टेड ऑफ 20 marks, but it will hold 10 marks in the term end result. Periodic test again will be conducted of 20 marks, which will again hold the weightage of 10 marks in the term end result.
एंड फिर हमारा जो इंटरनल असेसमेंट होगा विच विल इंक्लूड 5 मार्क्स फ्रॉम द अटेंडेंस एंड 5 मार्क्स of the notebook, the classwork notebook students have. So in total, जो before the term end exam, mid term या annual exam से पहले हमारा total weightage हो जाएगा 30 marks का, and the term end exam will be conducted for 70 marks each, like the mid-term exam and the annual exams. तो overall जो हमारा total बनेगा that will be out of 200 at the grand total of the annual exam. So this is how we are going to assess this way. And yes, subject enrichment activity will be credited in the term exams. उसको हम separate नहीं लेंगे. And periodic test जैसा कि हम हमेशा से हमारा जो pattern रहा है in form of Thursday test will be conducted. The schedule for subject enrichment activity as well as the periodic test is already being shared with the students and will be doing in this fashion. The Thank- other informations will already be coordinated in the groups. All The- the other rubrics or whatever the things rub- would be required. Yes, it the would be- rubrics and the pattern of subject enrichment activity हम regularly share करते रहेंगे. जब भी जैसे जो भी activity as per the schedule, हर हफ्ते अगर शेड्यूल की बात करें तो हर हफ्ते एटलीस्ट हमने 2 सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज लगी रखी है. द सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज विल बी कंडक्टेड एवरी थर्सडेज एंड एवरी ट्यूसडेज, और उनके अकॉर्डिंग उनकी जो भी सब्जेक्ट एक्टिविटी रहेगी कि भाई किस सब्जेक्ट की कैसे एक्टिविटी किस ग्रेड में करी जा रही है, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड ऑन दी what classroom WhatsApp group, and you can be updated. And if you people have any doubt regarding the subject enrichment activities, you can always contact the subject teacher. Before contacting the subject teacher, please contact before the regular timings, that is 7 p.m. And anything else, Suchita ma'am, you would like to add? So let's end this discussion here only. I hope all the questions have been answered properly. Thanking to Sir Junaid and Ma'am Suchita with our team for their precious time. This was indeed an informative discussion, and for more such updates, stay tuned. Thank you so much.